آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی تاریخی فتح کی امریکی کانگریس میں بھی گونج۔ امریکہ چین اقتصادی اور سلامتی جائزہ کمیشن کی امریکی کانگریس میں پیش کردہ رپورٹ میں مارکہ حق میں بھارت کے خلاف 4 روزہ جنگ میں پاکستان کی فتح پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے فوجی برتری حاصل کی۔ پاکستان کی جدید ہتھیاروں کے ساتھ کارکردگی نمایاں رہی۔ پاکستان نے چین کے ہتھیاروں کی مدد سے بھارت کے رافیل طیاروں کو گرایا۔ But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا۔ امریکی صدر کی تصدیق۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ دنیا بھر میں 8 بڑی جنگیں رکوائیں جس پر فخر ہے۔ پاکستان اور بھارت اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ گفتگو۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت اور رواداری کا مکمل پیکر۔ برداشت اور رواداری قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ امن اور بھائی چارے پر مبنی ایسے معاشرے کو فروغ دینا ہے جہاں تحمل اور برداشت ہماری قومی پہچان ہو۔ قیام پاکستان سے اسی سوچ نے ملک کو آگے بڑھایا۔ قائد اعظم کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے معاشرے کو عدم برداشت سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم کی آئندہ مانسون میں جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے تیاری کی ہدایت۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری، فوری عمل درآمد کا حکم۔ وزیر اعظم کی صدارت میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کی حکمت عملی سے متعلق اجلاس۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی پر مربوط منصوبہ سازی کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں عارضی سکولز کے قیام کا حکم۔ تحصیل اور ضلعی سطح پر ارلی وارننگ سسٹم فعال بنانے کی ہدایت۔ طویل مدتی حکمت عملی کے تحت 5 سال میں موسمیاتی مطابقت کا حامل انفراسٹرکچر تیار کرنا ہے۔ آئندہ 200 دنوں میں مربوط اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کی چیئرمین NDMA کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم کا پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں ظہرانہ۔ وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ اور محمد حنیف عباسی کی شرکت۔ سری لنکا اور زمبابوے کے ہائی کمشنرز اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ 3 ملکی سیریز سے کرکٹ شائقین کو اعلیٰ معیار کا کھیل دیکھنے کو ملے گا۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کا مسلسل انعقاد ملک کے مثبت تشخص، امن اور استحکام کا ثبوت ہے۔ محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں ملاقات۔ مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبے کے امور پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور یورپی یونین کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا کی برسلز میں ملاقات۔ پاکستان اور یورپی یونین تعلقات کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ GSP+ تجارت، معاشی تعاون اور علاقائی و عالمی سلامتی کی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا مشترکہ ترجیحات اور تعاون کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ نواز شریف کا جب نام لو، شہباز شریف کا جب نام لو تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ موٹر ویز، سڑکوں کے جال، ٹرانسپورٹ کے جال، میٹرو بس، اورنج لائن، ایٹمی دھماکے، ایئرپورٹس اور ہاسپٹلز، سکولز، کالجز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خطہ پٹھوار کے عوام کے لیے ایک اور تحفہ۔ راولپنڈی میں بھی الیکٹرو بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کرایہ صرف 20 روپے۔ خصوصی افراد، خواتین، بزرگ اور طلباء مفت سفر کر سکیں گے۔ خواتین کے لیے الگ جگہ مختص، CCTV کیمرے نصب، وائی فائی کی بھی سہولت موجود۔ 80 گرین بسز پنڈی کے عوام کے لیے حقیر تحفہ ہیں۔ مریم نواز کا راولپنڈی میں 30 ارب روپے سے سگنل فری کوریڈور بنانے کا اعلان۔ مختلف اضلاع میں سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں۔
مخالفین بھی جانتے ہیں کہ کام کرنا صرف مسلم لیگ نون کو آتا ہے۔ 1.5 سال میں شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور کینسر اسپتال کی تکمیل کے بعد راولپنڈی اور ڈیرہ غازی خان میں کینسر اسپتال بنانے کا اعلان۔ امریکہ اور سعودی عرب کا سول نیوکلیئر معاہدے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کی سعودی عرب کے لیے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری۔ سعودی عرب کو F-35 سٹیلتھ لڑاکا طیارے اور 300 ٹینک فروخت کیے جائیں گے۔ مصنوعی ذہانت کے تاریخی معاہدے کے تحت سعودی عرب کو بہترین امریکی AI سسٹم تک رسائی دی جائے گی، وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اور عشائیہ میں شرکت۔ سعودی عرب کا امریکہ میں سرمایہ کاری 600 سے بڑھا کر 1000 ارب ڈالرز کرنے کا اعلان۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ عالمی امن میں صدر ٹرمپ کا کردار قابل تعریف ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ قوموں کی ترقی میں چیلنجز آتے رہتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے متحد ہو کر ہی چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ترقی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے اصلاحات متعارف کرائیں۔ نجی شعبے کا معیشت کی بہتری میں اہم کردار ہوتا ہے۔ 300 سے زیادہ رجسٹرڈ کمپنیاں فلاحی اقدامات کے لیے فنڈنگ کرتی ہیں۔ حکومت فلاحی کاموں کے لیے نجی شعبے کی بھرپور مدد کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ حکومتی معاشی پالیسیز اور اصلاحات کے مثبت نتائج آنا شروع۔ ایس این گلوبل اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم نے IMF پروگرامز اور بہتر مالی نظم و نسق کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سیراج سے منیر کی امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ رواں سال پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریباً 40% اضافہ ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ ایشیا کی بہترین کارکردگی دکھانے والی مارکیٹس میں شامل۔ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام کے بارے میں بلومبرگ کی رپورٹ۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی مشترکہ فوجی مشق شاہین سٹرائک دوم اختتام پذیر۔ مشقوں میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاک فوج اور انڈونیشین آرمی کے لڑاکا دستوں نے حصہ لیا۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے فوجی دستوں نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عملی کارکردگی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ مشترکہ تربیت کا مقصد انسداد دہشت گردی آپریشنز میں شامل ڈرلز، طریقہ کار اور تکنیکس کو بہتر بنانا تھا۔ مشق دونوں دوست ممالک کے درمیان جاری فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کسی بھی قسم کی جو سمگلنگ ہے یا انفلٹریشن ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے تھرو بارڈر، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کی طرف جائیں تو افغانستان والے یہ جو افغانی لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے، اور وہ ہمارا نقصان کرتے ہیں۔ یہ جو باڑ لگی تھی یہ بھی اسی وجہ سے لگی تھی کہ بھائی وہاں سے دہشت گرد جو ہے پاکستان میں داخل نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو نہیں کرتے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ کا بھی یہی انشیٹو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں پہلے سیکورٹی اس کے بعد تجارت ہے۔ دہشت گردی ختم ہونے تک بارڈر کھولنا قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ پاکستانی عوام کا ملکی سلامتی کے لیے افغان بارڈر سے متعلق سخت اور دو ٹوک مواقف۔ دراندازی، سمگلنگ اور دہشت گرد نیٹ ورکس کی ہر سرگرمی افغان بارڈر سے جڑی ہے۔ اسلام آباد کچہری حملہ ثبوت ہے کہ دہشت گردی کی جڑیں افغانستان میں موجود ہیں۔ افغان عناصر بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ 18 وزراء اور 2 مشیر شامل۔ قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی تقریب حلف برداری میں خصوصی شرکت۔ وزراء کو قلمدان بعد میں تفویض کیے جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ظالمانہ کارروائیاں جاری۔ سری نگر میں گھروں پر چھاپوں کے دوران ایک ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ سمیت متعدد کشمیری گرفتار۔ موبائل فون، لیپ ٹاپ، بینک دستاویزات اور کتابیں ضبط کر لیں۔ قابض فورسز کی بارامولہ میں اڑی اور دیگر علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں۔ حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت سینکڑوں نظر بندوں سے پوچھ گچھ۔ بھارت دلی دھماکے کی آڑ میں کشمیریوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے۔ پوری آبادی کو دہشت گرد قرار دینا لاکھوں کشمیریوں کی توہین ہے۔
कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला। फाशिस्ट मोदी के भारतीय जंगी जराइम आलमी सतह पर बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की जद में मुतादिद घर मिस्मार कर दिया गया। बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे TRT ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। भारत कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। पहलगाम हमले और दिल्ली बम धमाके के बाद भारतीय फोर्सेस ने शुबहात की बुनियाद पर कश्मीरियों के मुतादिद मकानात मिस्मार किए। अक़वाम आलम की खामोशी का फायदा उठाते हुए भारत कश्मीर में जंगी जराइम को कानून के लिबादे में छुपाने की भोंडी कोशिश कर रहा है। TRT की चश्म कुशा रिपोर्ट। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फिजाई नाकामी से ज़मीं बोझ। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय मीडिया का मार्का हक में हजीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसानात का एतराफ। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से 4000 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए चीन की हुकूमत से रुजू करने पर मजबूर। 1971 की जंग में भारत का मुक्ति बाहिनी दहशत गर्दों के जरिए घिनौना और शर्मनाक किरदार। भारत ने रियासती दहशत गर्दी से पाकिस्तान को तकसीम करने की बहिमाना साजिश की। नौजवान बंगालियों को मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया। मुक्ति बाहिनी दहशत गर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। दहशत गर्दों ने हजारों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया। फितरत का हसीन मंजर। गवादर के मगरबी साहिल पर स्पिनर डॉल्फिन का बड़ा झुंड नमूदार। डॉल्फिन अपने एक्रोबैटिक हरकत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। माहीगीरों ने दिलकश मनाजिर वीडियोस में महफूज कर लिए। डॉल्फिन का साहिल के करीब आना सेहतमंद समुद्री माहौल की अलामत। सर्द मौसम में स्पिनर डॉल्फिन गर्म पानी और ग़िज़ाई ज़खायर के ताक़ुब में मकरान कोस्ट के करीब आती हैं। डायरेक्टर माहौलियात GDA अब्दुर्रहीम बलोच। रियाज में पाकिस्तान के असजद इकबाल ने ओमान स्नूकर वर्ल्ड कप में चांदी का तमगा जीत लिया। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के फाइनल में इंग्लैंड के हॉर्वे चैंडलर ने 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से कामयाबी समेटी। इवेंट में 68 क्यूएस ने हिस्सा लिया। कोलंबो में ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 129 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 2 विकेटों पर 298 रन बनाए। महरीन अली की 133 रन की शानदार इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 169 रन बना सकी। और 3 मुल्की T20 सीरीज दूसरे मैच में कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे रावलपिंडी स्टेडियम में मध्य मुकाबला शाम 6 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दोनों टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने अमन और भाईचारे पर मबनी एक ऐसे मुआशरे को फ़रोग देना है जहाँ तहम्मुल और बर्दाश्त हमारी पहचान हो। बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन की तकरीब से वज़ीर आज़म के खिताब की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर आज़म हाउस में बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बर्दाश्त और रवादारी किसी भी समाज की अहम पहचान होती है। क़याम पाकिस्तान से इसी सोच ने मुल्क को आगे बढ़ाया, ताहम वक्त के साथ कुछ अदम बर्दाश्त के रवैये सामने आए। कायद आज़म के असूलों पर कारबंद रहते हुए अपने मुआशरे को अदम बर्दाश्त से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। हज़रत कायद आज़म की जो फिलॉसफी थी कि ऐसा पाकिस्तान जिसमें बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त और तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम दोबारा रिवाइव करेंगे तो पाकिस्तान का माशरा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। वक्त आ गया है कि हम इस्लामी तालीमात को फ़रोग दें, अमन, भाईचारा और बामी जो ताल्लुकात को फ़रोग दें और अमली मैदान में अमली सबूत दें। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बर्दाश्त और रवादारी किसी भी मुआशरे का सतून है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम शहरियों को यकसा हकूक हासिल हैं। बानिए पाकिस्तान के विजन रवादारी और बर्दाश्त को अपनाते हुए मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर कामरान माइकल ने कहा कि कमजोर और महरूम तबकात के साथ हमदर्दाना और बराबरी का रवैया मजबूत मुआशरे की अक्कासी करता है। पुरअमन बकाए बाहमी किसी भी मुल्क की तरक्की की जमानत है। चेयरपर्सन NCSW उम्मी लैला ने अपने खिताब में कहा कि दिन की मुनासिबत से थीम एक दूसरे के लिए पुल बनते हुए आसानियां बांटना है। ये दिन हमें बर्दाश्त और रवादारी के तजदीद का दर्स देता है। तकरीब में अरीब अजहर ने सूफियाना कलाम पेश करके वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत हाजरीन से खूब दाद समेटी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइंदा बरस मानसून में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी देते हुए फौरी अमल दरामद की हिदायत की है। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबा बंदी और NDM में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करें। उन्होंने पानी के बेहतर इंतजाम के हवाले से कौमी सतह पर मनसूबाबंदी के लिए नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास की तैयारी की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है और हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर खा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की की बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर है, जबकि मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। इजलास में वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कलील, दरमियाने और तवील मुद्दती मंसूबों और आइंदा बरस मानसून के हवाले से इशारियों के आलमी तखमीनों पर ब्रीफिंग दी गई। मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का है कहना कि वज़ीर आज़म ने मुस्तकबिल में मानसून के मुमकिना खतरात से निमटने के लिए कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी देते हुए फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी मजहर। इस्लामाबाद में चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कलील, वस्ती और तवील मुद्दती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई, जिस पर वजीर आज़म ने कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी देते हुए फौरी अमल दरामद करने की हदायत की है। फिक्स, एक्सपैंड एंड बिल्ड। फिक्स 200 दिन, 250 दिन, एक्सपैंड 1 से 3 साल एंड बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 3 से 5 साल। ये है जनाब स्ट्रैटेजी जो आज वजीर आज़म ने अप्रूव की। तो वजीर आज़म ने हुक्म दिया है कि एक टेम्पररी स्कूल सिस्टम तबाही जहां पे भी हो, मुकम्मल प्लान हो कि ये बच्चे किस तरह किस स्कूल में जाएंगे, वो प्लान मुरतब करके उनके वापस उनके हवाले अगले 2 महीने के अंदर अंदर किया जाए। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, 2026 में मानसून ज्यादा शदीद हो सकती है। हमारे पास सैटेलाइट मौजूद हैं। मुख्तलिफ शोबों, महकमों
वसाइल, अहदाफ और हिकमत अमलियों को यकजा करके बनाई जाने वाली मरबूत मनसूबा बंदी का मकसद जानी व माली नुकसान में कमी लाना है। 95% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। आने वाले दिनों में 2026 के मॉनसून में इस साल के मॉनसून की निस्बत से तकरीबन 22 से 26% ज्यादा इंटेंसिटी मुतवक्को है। ग्लोबली टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, हमारा सर्दियों का स्पैन कम होगा, बट इस साल सर्दियों की जो इंटेंसिटी है उसमें फैलाव ज़्यादा नहीं है, बट उसके अंदर हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान या हमारे शुमाली इलाका जात में मामूल से थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि इदारों को इतलात की फराहमी को मजीद तेज किया जाएगा। वजीर आजम ने जो प्रोग्राम मंजूर किया है इस पर सूबों से मशावरत की जाएगी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस, अमन और इस्तेहकाम का सबूत है। 3 मुल्की सीरीज से क्रिकेट शायकीन को आला मयार का खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के क्रिकेट टीमों के दरमियान के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिए गए ज़ोहराने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सह मुल्की सीरीज में क्रिकेट टीमों ने जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सिताइश है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरीन इंतजामात, मौसर हिकमत अमली और आला पेशावराना महारत के साथ मैचेस का कामयाबी से इनेकाद कर रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तीनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट के जरिए दोस्ती और बाहिमी ताउन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की इसी तरह से मेजबानी करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक उमूर और मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक चेयरमैन सेनेट और रुकने बलूचिस्तान असम्बली सादिक संजरानी भी मुलाकात में मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा के दरमियान मुलाकात ब्रसल्स में हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार करते हुए शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफा और कसीर उलजहती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की हिमायत को तस्लीम किया और सराहा। वफूद ने GSP प्लस, तिजारत, माशी ताउन और इलाकाई सलामती की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। अफ्रीका ने कसीर उलजहती के लिए अपने आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका तरजीहात और ताउन के फ़रोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की शिरकत के लिए ब्रसल्स पहुंच गए हैं। इसाक डार खारजा उमूर के बारे में यूरोपीय यूनियन के नायब सदर काजा कलास के हमरा 20 और 21 नवंबर को होने वाले डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म चौथे EU इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में भी शिरकत करेंगे। उनकी मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा और यूरोपीय यूनियन हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और मुस्लिम लीग नून लाजिमो मलजूम है। रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बस फेज 2 की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हर आने वाला दिन गुज़िश्ता दिन से बेहतर होगा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बस सर्विस फेज 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सिवा कभी किसी ने पाकिस्तान या पंजाब में एक ईंट नहीं लगाई। मुखालफिन भी एतराफ करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत कौमी तरक्की से इबारत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है और नवाज शरीफ का नाम सोचो तो इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की का नाम जहन में आता है। पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूसन मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है, काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कई लोग होते सियासत में उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है ज़हन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल,
ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। गुज़श्ता एक साल में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि रवां साल 1,000 इंटर विलेज सड़कें बनने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसी शहर में कोई सड़क टूट फूट वाली नहीं रहेगी। मैं 2 प्रोजेक्ट्स को देख के आ रही हूँ। एक की मैंने ग्राउंड ब्रेकिंग की है और वो जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर माशाल्लाह बन रहा है, नवाज शरीफ फ्लाईओवर जो अडयाला रोड पे है वो बन चुका, रिकॉर्ड मुद्दत में उसकी कंप्लीशन हुई पिंडी के आवाम के लिए। और वो पिंडी के आवाम जो ट्रैफिक ब्लॉक्स में, ट्रैफिक जैम्स में घंटों ख्वार होते थे, अब वो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सहूलत जो है वो नवाज शरीफ फ्लाईओवर की सूरत में उनको माशाल्लाह मिल गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में 30 अरब से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने और दीगर तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान किया। उन्होंने लाहौर कैंसर अस्पताल की तकमील के बाद अगला कैंसर अस्पताल रावलपिंडी और फिर डीजी खान में भी बनाने का ऐलान किया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तरक्की के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराएं। इस्लामाबाद में कॉरपोरेट शोबे की जानिब से साल 2024 में फलाही कामों के हवाले से रिपोर्ट के इजरा के मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान में मुख़य्यर हज़रात की कमी नहीं है। 300 से ज़ायद रजिस्टर्ड कंपनियां फलाही इक़दामात के लिए फंडिंग करती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सोशल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। 400 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें से 300 से ज़्यादा ने एक्चुअली they have participated in some level of CSR activity, and roughly 1/3 of them have actually disclosed. आप मिशले राह हैं, हमें सबको देखना चाहिए कि हम इसको आगे कैसे लेके चलें, because आपकी जो commitment है in terms of corporate giving, ये हमारा cornerstone है of our social development and quite frankly an expression of our national identity. और बुलेटिन में अब कुछ बात हो जाए PSX की ऊंची उड़ान की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान देखने को मिला। 100 इंडेक्स 1291 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,62,226 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं कराची से ज़मीर अब्बास। हुकूमत की मौसर इक्तिसादी पॉलिसीज की वजह से मुल्क के मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज की तारीफ करते हुए कहा कि इन पॉलिसीज से मुल्क में कारोबार करने वालों के एतमाद में खातिर खा इजाफा हुआ है। 2023 में दिवालिया होने के खतरे से दो चार मईशत को मुश्किल फैसले करके इस्तेहकाम की जानिब गामजन करने के लिए हुकूमत ने बेहतर हिकमत अमली से काम किया, जिसकी वजह से आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसीज फिच और S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और आने वाले 10 साल गुज़िश्ता 10 सालों से बेहतरीन साबित होंगे। आई थिंक कि बिजनेस कॉन्फिडेंस के बढ़ने की जो ओवरऑल जो वजह है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जिसमें इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने बड़े एहसन तरीके से 38% से जो है उसको ला के अब 6% पर गवर्नमेंट ले आई है। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो हमने देखा कि वो 22% से 11% पर आए, वो भी एक मेजर रीज़न है। और आई थिंक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है और कैपिटल मार्केट अगर आप देखें तो उसके अंदर भी जो ग्रोथ देखी गई है 45% जो है आधे साल में देखी गई, तो आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसको मुस्बत लिया जा रहा है। आज मजमूई तौर पर 483 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 193 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 244 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 46 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 45 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत के 3,88,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 3 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस और रिफाइनरीज की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खानगढ़ में रुकन कौमी असम्बली अली गौहर खान महर की वालिदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहुमा के साले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श खान महर समेत अहले खाना के दीगर अफराद से भी मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में मुकम्मल हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया।
बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको बताएंगे कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में DGISPR की आमद को भरपूर सराहा। DGISPR ने खुसूसी नशस्त के दौरान दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशावराना किरदार पर रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतालिक आगाह किया। तलबा और असातिज़ा का कहना था कि इस मकालमे ने उनके कई इबहाम दूर कर दिए और कौमी यकजहती के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाया। हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान से ऑडियंस थी, जिसमें हमारे पास हर प्रोविंस से, हर तहसील से स्टूडेंट्स थे, जिनके माइंड में एक गलत पर्सपेक्टिव बना हुआ था हमारी आर्मी के लिए, जिनको मिस कम्युनिकेट किया गया था, मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आज DGISPR ने आकर उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को टैकल किया। यहाँ पर हर स्टूडेंट था जिसके पास मिस इन्फॉर्मेशन थी, उनको इन्होंने आकर क्लियर किया। दैट वाज वेरी ग्रेट सेशन। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद समवन हु नोज द ट्रुथ इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं वो झूठी खबरें, वो जो झूठी प्रोपेगेंडाज होती हैं, हम उन पर यकीन कर जाते हैं। बिकॉज हम आजकल की जो जनरेशन है, दैट जनरेशन इज वेरी एग्रेसिव। दैट जनरेशन जो सुनती है, जो उनके कानों पर बात पड़ती है, दे जस्ट एक्ट ऑन दैट। जो प्रोपेगेंडाज देख रहे हैं उन पर यकीन कर रहे हैं। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रॉस चेक द डेटा, क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज रियल और नॉट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। Today the session, I must say, it was an eye opener for most of the people since the propaganda that is going on. It was a need, especially a need in the dynamics of this university, because as VC Sahab has mentioned today, we have students from every tehsil of this country. In Pakistan Army we can find persons from all across of Pakistan, from all even villages of Pakistan. It's truly Pakistan. There is no Balochistan, no KPK, no Punjab. It is Pakistan. Pakistan Army is Pakistan. Sessions like these, they are so beneficial for the society because I as a youth can understand this problem that youth nowadays is more focused and more interested towards social media. Sessions like these are so important and beneficial for the society because they help us to clarify the misconceptions that had crept into the minds of the youth. पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका फौजी मार्च शाहीन स्ट्राइक 2 8 से 19 नवंबर तक जारी रही। ISPR के मुताबिक इन मशकों में इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से पाक फौज और इंडोनेशियन आर्मी के लड़ाका दस्तों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में दोनों मुल्कों के फौजी दस्तों ने पेशावराना सलाहियतों के हवाले से अमली कारकर्दगी का आला मुजाहरा पेश किया। मुश्तरका तरबियत का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन में शामिल ड्रिल्स, तरीक़ाकार और टेक्निक्स बेहतर बनाना था। मुश्तरका मशक में खास तौर पर इस अमल पर खुसूसी तवज्जो दी गई कि शहरी आबादी में इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशन किस तरह कामयाब बनाना है और धमाका खेज खुदकार आलात को किस तरह से नाकारा बनाना है। शाहीन स्ट्राइक 2 मुश्तरका मशक दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान जारी फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाक बहरिया ने इंसदाद मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में $130 मिलियन की मुनशियात जब्त कर ली। इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बहरा अरब में किया। इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज की टास्क फोर्स 150 की मुआवनत में किया गया। मशकूक माहीगीर कश्ती से ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम से ज़्यादा मेथाम्फेटामाइन आइस जब्त कर ली गई। ये इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन गुज़िश्ता 2 माह में पाक बहरिया का मुसलसल तीसरा कामयाब ऑपरेशन है। पाक बहरिया समुद्र में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमा वक्त तैयार, कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म और आर्मी मैरीटाइम सिक्योरिटी में फ़ाल किरदार अदा कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया के कामयाब ऑपरेशन से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। सदर ममलिकत ने कहा कि PNS तबूक का बहरा अरब में इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन पाक बहरिया की मुस्तैदी का सबूत है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे फ़िज़ाई नाकामी से ज़मीबोस हो गए। भारतीय ढकोसले और गरूर के बरक्स पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली तारीखी हज़ीमत, भारी माली नुकसान और फ़िज़ाई नाकामी से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार है। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान बल्कि मौशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। फ़िज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसान के बावजूद अफगानिस्तान के साथ फ़िज़ाई रास्तों से तिजारत मज़ाक़ खेज़ है। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भभकियाँ उसकी नाकामी का वाज़ेह एतराफ़ हैं।
दूसरी तरफ करोड़ों रुपए में सब्सिडी का मुतालबा असल में भारत की नाकाम पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज ने मार्का हक में हजीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसानात का एतराफ किया है। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया ने भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया ने भी ये एतराफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। Air India seeks a subsidy of 4,000 crore from the government to recover losses after Pakistani airspace closure. और अब मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने अपनी जालिमाना कार्रवाइयां जारी रखते हुए एक डॉक्टर और उनकी अहलिया समेत मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। KMS के मुताबिक SMHS अस्पताल श्रीनगर में तैनात डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उनकी अहलिया शहजादा अख्तर को श्रीनगर में घरों पर छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया। भारतीय फोर्सेस ने इन कार्रवाइयों के दौरान मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बैंक के कागजात और किताबें जब्त कर लीं। भारतीय हुकाम ने शहजादा अख्तर की गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके रवाबित तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के मुतालबा करने वाली ख़वातीन की तंजीम दुख्तरान मिल्लत से थे। भारतीय फ़ौज और पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने ज़िला बारामूला में उड़ी और दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की। जम्मू की कोट भलवाल जेल में छापे के दौरान हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों समेत सैकड़ों नज़रबंदों से सख्त पूछगछ की गई। जेल में इस वक्त तकरीबन 600 हुर्रियत पसंद नज़रबंद हैं। हाल ही में दिल्ली के लाल किले में धमाके में जाम बहक होने वाले ज़िला गांदरबल के इलाके बाबा नगरी वांगत से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साल कश्मीरी मजदूर बिलाल अहमद सांगू की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। उनके जसद खाकी को आज दिल्ली से वादी कश्मीर लाया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक की सदर महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत और भारतीय काबिज अफवाज को खबरदार किया कि वो दिल्ली धमाके के बाद आम कश्मीरियों को निशाना बनाने से बाज रहें। उन्होंने कहा कि पूरी आबादी को दहशतगर्द करार देना लाखों कश्मीरियों की तौहीन है। भारत में जंगी जराइम मामूल बन गए। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे TRT ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जराइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। TRT के मुताबिक दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद ही जनूबी कश्मीर में महज इल्जाम की बुनियाद पर एक घर मिस्मार कर दिया गया। भारत जुल्म और इस्तबदाद के जरिए कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। TRT के मुताबिक 2019 से गैर कानूनी हिरासतें, राब्ते की बंदिश और खौफ की सियासत भारतीय हुक्मरानों के आलात बन चुके हैं। सियासी इख्तलाफ राय अब कैद के साथ साथ कश्मीरी खानदानों के मकानात मिस्मार और जायदाद जब्त का सबब भी बन रहा है। 2020 से 2024 तक भारतीय फौज की कार्रवाइयों से 1172 शहरी मकानात के जुज़वी या मुकम्मल नुकसान की दस्तावेज बंदी की गई है। TRT का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में जारी दहशतगर्दी सिर्फ दाखिली ज़्यादती नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानूनी निज़ाम की नाकामी भी है। अक़वाम आलम की खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए भारत कश्मीर में जंगी जराइम को कानून का लिबादा पहना रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 वुज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जहां कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने वुज़रा से हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी मौजूद थे। हल्फ उठाने वालों में मियाँ अब्दुल वहीद, सरदार जावेद अयूब, जावेद इकबाल बिढानवी, मलक जफर इकबाल, चौधरी अली शान सोनी, दीवान अली खान चुगताई, चौधरी अरशद, चौधरी कासम मजीद, सरदार जियाउल कमर, चौधरी मोहम्मद रशीद, नबीला अयूब, मोहम्मद रफीक नैयर, चौधरी यासर सुल्तान, सैयद बाजल अली नकवी, चौधरी आमिर यासीन, चौधरी मोहम्मद अखलाक, सरदार मोहम्मद हुसैन खान और फ़हीम अख्तर रुबानी शामिल हैं। सरदार फहद याकूब और सरदार अहमद सगीर ने मुशीरान की हैसियत से हल्फ उठाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने उनसे हल्फ लिया। हम सब इकट्ठे होंगे, मेहनत करेंगे। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से उनके वर्कर, हम सब एक ही लोग हैं, इस खित्ते के लोग हैं और मिल के इंशाअल्लाह इस रियासत को अल्लाह ने चाहा तो ये 7 माह नहीं होंगे, ये 10 साल पर भारी होंगे। हल्का के लोगों को सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुसलसल 4 बार मुझे असम्बली में मुंतखब करके भेजा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में अंदर ख्वातीन को बावकार बनाने के लिए फैसला साजी में उनको
रोल दिया जाए और जब फैसला साजी में ख्वातीन बैठेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तब्दीली आपको नजर आएगी। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद कश्मीर पुलिस, अदारों के सरबराहान और सियासी और समाजी शख्सियात समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मियां अब्दुल वहीद काबीना में मोस्ट सीनियर वजीर होंगे। वज़रा को वजारतों के कलमदान बाद में सौंपे जाएंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने वाला था, जिसको मैंने रुकवाया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने दुनिया भर में 8 बड़ी जंगें रुकवाई, जिस पर फख्र है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब अहम शराकतदार है और तमाम मामलात पर हमारा यकसा मौक़िफ़ है। मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीन के मामले पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने कहा कि हम एक अहम दिफाई मुआहदे पर पहुँच गए हैं और सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर मुआहदा भी हो सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि मेरी हुकूमत 1 साल के अंदर $21 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई और सऊदी अरब भी $600 अरब तक सरमायाकारी कर रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि सदर ब्रिटेन से यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहदा करना चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सैद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की और जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यांमार के मुसलमानों की कानूनी हैसियत का दरीना मसला हल कर लिया गया है। सऊदी अरब के सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस ज़िम्न में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा की किर्गिस्तान में एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मसातो कांडा से मुलाकात हुई। मुलाकात में वफाकी वजीर ने कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स और नेटवर्क मनसूबों में मुश्तरका सरमायाकारी की तजवीज़ दी। शिजा फातिमा ने डिजिटल सेक्टर रोड मैप के लिए रिजल्ट्स बेस्ड फाइनेंसिंग मॉडल पर भी बात की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐलान किया है कि वकला के लिए कंपनसेशन पैकेजेस लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फ्राहम किए जाएंगे, जो तवील मुद्दती मुस्बत असरात रखेंगे। इस्लामाबाद में पंजाब के मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों से मुलाकात में वज़ीर कानून ने कहा कि वकला के लिए पेशेवराना मायार को फ़रोग देना लाजमी है। मुलाकात में लॉयर्स, बार रूम्स और उनके लिए जारी ग्रांट्स पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख से मेयरज़ के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मेयरज़ पाकिस्तान में एक नया पोर्ट, जदीद शिपिंग टर्मिनल कायम करेगा। इसके अलावा सप्लाई चेन नेटवर्क और वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में भी मुस्तकबिल में मंसूबे का हिस्सा है। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मुल्तान उनके दिल के बहुत करीब है और वो इस शहर की तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। निजी स्कूल में खिताब करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि उन्होंने मुल्तान में मुतादिद तालीमी और तरक्याती मंसूबे शुरू किए जो आज भी आवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर कानून से दरख्वास्त की कि गिलानी लॉ कॉलेज की फैकल्टी की नशस्तों में इजाफा किया जाए। पेट्रोलियम के वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि आर्जी ओहदों से उनके आज़म और वाबस्तगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में
کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اوان نے کہا کہ نواز شریف کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے کے باعث علاقے میں پانی کی فراہمی ممکن ہوئی. انہوں نے مزید بتایا کہ حلقے میں گیس کی فراہمی کے مسائل کے حل کے لیے وہ علی پرویز ملک کو اپنے ساتھ لائے ہیں تاکہ اس منصوبے پر عملی پیش رفت ہو سکے. وفاقی آئینی عدالت نے خیبر پختونخوا میں سٹون کرشنگ سے متعلق کیس نمٹا دیا. 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کیس کا تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. درخواست گزار کی استدعا پر چیف جسٹس نے کہا کہ قوانین اور قواعد پر عمل درآمد آئینی عدالت نے نہیں کرانا. یہ تمام چیزیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہیں. وفاقی آئینی عدالت کا فل کورٹ اجلاس چیف جسٹس امین الدین خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق سپریم کورٹ رولز 2025 وفاقی آئینی عدالت میں بھی نافذ العمل ہوں گے. اعلامیہ کے مطابق آئینی عدالت کے کسی بھی مقدمے کی سماعت کم از کم 2 رکنی بینچ کرے گا جس کی اپیل کی سماعت 3 رکنی یا اس سے بڑا بینچ کرے گا. خزانے کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سلیم مانوی والا کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس میں اسلامک بینک ڈریس کوڈ، سوس بارڈ کلیئرنس اور فیکلٹی تنخواہوں پر غور کیا گیا. 375 ارب روپے کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی پر اجلاس کو بتایا گیا کہ یہ ہنسا دراصل ایگزیکٹو سمری میں ٹائپو ایرر کی وجہ سے شامل ہوا جس کی وجہ سے اٹارنی جنرل نے بھی توثیق کی. کسی بھی قانونی رپورٹ میں یہ غلطی موجود نہیں تھی. اس حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری جاری ہے جبکہ آڈیٹر جنرل 9 ارب روپے سے متعلق علیحدہ بریفنگ دیں گے. خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے بتایا کہ 2 اعداد و شمار کو جمع کرتے ہوئے غلطی ہوئی. اس حوالے سے آڈیٹر جنرل آفس کے ساتھ الگ ملاقات کر کے اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے. کمیٹی نے وزیر مملکت برا خزانہ کی تجویز مان لی. بچوں اور نوجوانوں میں تمباکو نوشی کے انسداد کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب ہوئی. رپورٹ کر رہی ہیں فرحانہ خان. اسلام آباد میں تمباکو نوشی کی روک تھام کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کے ترجمان مرتضی سولنگی نے کہا کہ کچھ نوجوان بطور فیشن سگریٹ نوشی کرتے ہیں جو نہ صرف ان کی صحت کو تباہ کرتی ہے بلکہ یہ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. ہر دور کے نوجوانوں کے اپنے شوق ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان کو ایکسائٹ کرتی ہیں، جو نیا فیشن ہوتا ہے، جو ہر دور کی اپنی کوئی کول چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو چیز ہے نا تمباکو، سگریٹ، ویلو، پاؤچ، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کول نہیں ہے. تو آپ کی زندگی میں جتنی کول چیزیں ہیں اس میں 10-15 اور کول چیزیں ڈال لیں لیکن اس کو منفی کر دیں جس کو ٹوبیکو کی صنعت کہتے ہیں. اس موقع پر قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار، ممبر ڈاکٹر شازیہ سمرو نے کہا کہ حکومتی سطح پر اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاہم زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سنجیدہ کوششوں سے مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے. تقریب سے ڈاکٹر خلیل اور مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے یوتھ ایمبیسیڈرز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا پر تمباکو نوشی کی تشہیر پر پابندی کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں تاہم گرافک ہیلتھ وارننگ کے ذریعے مزید بہتر انداز سے نوجوانوں کو صحت مند زندگی کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں سالانہ کانووکیشن میں 2300 سے زیادہ گریجویٹس کو ڈگریاں اور میڈلز دیا گئے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے صدف افضل کی اس رپورٹ میں. جناح کنونشن سینٹر میں ہونے والے کانووکیشن میں ریکٹر کامسیٹس یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرنا ہوگا. میرا تو یہ خواہش ہوگی جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں سب انٹرپرینورز بنیں، اپنی اسٹارٹ اپس کریں اور جاب پرووائڈرز بنیں نہ کہ جاب سیکرز. I got 2 silver medals and I did bioinformatics from ComSats اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. I want to build a app جو کہ لوگوں کو سوسائڈ سے بچائے گی کیونکہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ اسٹگما بہت زیادہ ہے تو I really want to do something for that community. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کامسیٹس یونیورسٹی ڈاکٹر محمد نفیس زکریا تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی خوشحالی اور قومی خود مختاری کا راز سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں ہی مضمر ہے. This convocation is a milestone for the students because it's a testament for their hard work, dedication and the work they have produced. چکوال کے ایک دیہی علاقے کا رہنے والا ہوں
اور وہاں پہ میری بیسک ایجوکیشن ہوئی ساری اینڈ آفٹر دیٹ آئی گاٹ ٹو کامسیٹس اینڈ آئی نیور اینٹیسپیٹڈ دیٹ آئی وڈ بی ایبل ٹو اچیو آل دس. 47ویں کانووکیشن میں 29 پی ایچ ڈی اسکالرز سمیت گریجویٹس کو 26 یونیورسٹی میڈلز، 1160 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں. اسی طرح 48ویں کانووکیشن میں پی ایچ ڈی اسکالرز سمیت 1100 سے زائد گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور ان سے نبرد آزما ہونے کے اقدامات کے حوالے سے میڈیا کانفرنس ہوئی. تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم. موسمیاتی تغیرات اور ان کے اثرات عالمی مسئلہ ہیں. اس سلسلے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے سیمینارز اور مختلف پروگرامز کے انعقاد کو یقینی بنایا جا رہا ہے. لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں میڈیا فار کلین ایئر کے موضوع پر ہونے والی میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر بشرا انجم بٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جامع حکمت عملی پر کام کر رہی ہے. تعلیمی ادارے موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دوسرے سماجی مسئلوں سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کی کردار سازی کر سکتے ہیں. Climate change is a reality. This is the right time to invest in a degree regarding climate change as well, because we need trained professionals as well. Policy making کے لیول کے اوپر، اور جب بھی ہم جا کے انٹرنیشنلی اپنا کیس پرسو کرتے ہیں we feel the dearth of trained personnel. So maybe you could think on those lines. Climate change, climate کے حوالے سے ڈگری، environment کے حوالے سے degrees is one thing that you really can invest and that is much needed in the near future as well. اس موقع پر صحافیوں نے پینل ڈسکشن میں آلودگی کے حوالے سے میڈیا کے کردار پر بحث کی اور عوامی رویوں میں تبدیلی پر زور دیا. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بنیادی جو نعرہ ہے صاف آب و ہوا ہونا چاہیے، کہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں وہ بیہیورل ہوتے ہیں، صرف گورنمنٹ کے نہیں ہوتے. ہم وہی عادات اگر اس اجتماعی طور پر بھی اپنا لیں جو ہم انفرادی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے آدھے زیادہ مسائل تو صفائی سے وابستہ ہیں. کانفرنس میں شجرکاری اور ماحول کے حوالے سے پروجیکٹس بنانے والے طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. ماحول اور فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ، جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کردو -6، لہک گلگت -3، بابو سر -2 اور گوپس میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، کھیل میں خوش آمدید. اسلامی یکجہتی گیمز میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ پاکستان کے ارشد ندیم آج ایکشن میں نظر آئیں گے. جیولن تھرو کا فائنل پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا. ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ قوم دعا کرے، اچھی کارکردگی دکھا کر گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. ورلڈ اسلامی سالیڈرٹی گیمز ہو رہی ہے سعودی عرب میں ریاض کے اندر. رات کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 11:05 میں میرا ایونٹ ہے. میرے لیے مزید دعا کریں تاکہ اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے میڈل جیتوں. تھینک یو. پی ڈی وی نیوز کے نمائندے رضا حسین جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے اولمپئن ارشد ندیم کے بھائی شاہد عظیم کا کہنا ہے کہ قوم ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے دعائیں کرے. ارشد ندیم ضرور قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے. جی، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے ہیرو اور میاں چنو کے سپوت اولمپئن ارشد ندیم کے گھر. میرے ساتھ اس وقت ان کے بھائی موجود ہیں، اور وہ کیا امید کر رہے ہیں؟ ارشد نے پہلے بھی پاکستان کے لیے الحمدللہ گولڈ میڈل بھی لیے ہیں اور گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ وہاں کے ریکارڈ بھی بنائے ہیں. میں آج امید کرتا ہوں کہ پہلے ارشد بھائی نے ورلڈ اسلامی گیم میں بھی سعودی میں ریکارڈ بنایا ہے، آج بھی. تو میں امید کرتا ہوں آپ ارشد بھائی کے لیے دعا کریں اور کچی تھرو کریں گے، پاکستان کے لیے گولڈ میڈل بھی لے کے آئیں گے، پاکستان کا جھنڈا بھی بلند کریں گے اور انشاءاللہ وہاں کا ریکارڈ بھی بنائیں گے. اور انشاءاللہ دعا کریں اور انشاءاللہ ارشد بھائی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لانے میں کامیاب. پاکستان کے اسد اقبال نے IBSF عمان سنوکر ورلڈ کپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا. فائنل میں اسد اقبال کا مقابلہ انگلینڈ کے ہاروے چینڈلر سے تھا. بیسٹ آف 9 فریمز میں ہاروے چینڈلر نے مقابلہ 2 کے مقابلے میں 5 فریم سے اپنے نام کیا. عمان سنوکر ورلڈ کپ میں ارشد کیوس نے حصہ لیا.
पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हसनैन और असजद इकबाल ने शिरकत की। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा।